ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ مردان خانے میں بالکل خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو پنچایت کے لیے نکلنا تھا۔ 2 دن پہلے اس کے بھائی کا انتقال ہوا تھا اور آج اس کو ونی کے لیے پنچایت میں اپنا مطالبہ رکھنا تھا۔ ارادہ اس کا ایسا کچھ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ وہ خونی کو سزا دینا چاہتا تھا، مگر اس کی مورے اور اس کے بابا جان کا حکم تھا کہ ہمیں ونی میں ان کے گھر کی عورت چاہیے، اور یہ بات عارم خانزادہ کو بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے کئی لڑکیوں کی زندگی کو بچایا تھا، کئی لڑکیوں کو ونی ہونے سے روکا تھا، مگر آج وہ خود ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہو گیا تھا جہاں اسے نہ کوئی راستہ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی آسانی۔ کافی دیر تک وہ خاموش وہیں اکیلا بیٹھا رہا، اور پھر ملازم کے بلانے پر وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ وہ عارم خانزادہ تھا، خانزادہ خاندان کا اکلوتا وارث۔ چھوٹے بھائی کی موت کی وجہ سے وہ بالکل مرجھا گیا تھا، ورنہ اس کے داجی اس کو کلام کی جان کہتے تھے۔ وہ باہر آیا تو گاڑیاں تیار تھیں، صرف عارم خانزادہ کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا گاڑی کے پاس پہنچ گیا۔ پراڈو کا دروازہ کھول کر وہ اس میں بیٹھ چکا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ سٹیئرنگ وہیل گھماتے ہی ان لوگوں نے گاڑیاں پنچایت کے روڈ پر ڈال دیں۔ گاڑی دھول اڑاتے ہوئے بڑے میدان کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ مسلسل اپنے دماغ کو جھٹک رہا تھا، خود کو کسی بھی طرح راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آج اسے ونی لینی ہی ہے، مگر دل کسی بھی قیمت پر اس حرکت کے لیے راضی نہیں تھا۔ گاڑیاں ایک جھٹکے سے بڑے میدان میں رکی، جہاں پر کئی چارپائیاں لگی ہوئی تھیں اور وہاں پر سرپنچ وغیرہ بیٹھے تھے۔ صرف اور صرف خانزادہ خاندان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ وہ سب مرد جیسے ہی گاڑیوں سے اترے، ان کے احترام میں تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ عارم خانزادہ اپنے بابا ذوالفقار خانزادہ کے ساتھ ایک کروفر سے چلتا ہوا اپنی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ان کے ساتھ ان کے چچا، تایا اور دادا حضور بھی موجود تھے۔ وہ لوگ ایک شان سے بیٹھ چکے تھے، دکھنے میں ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سب خان ہیں۔ ان کی رنگت سفید تھی، جس کی وجہ سے وہ سب میں نمایاں ہو رہے تھے۔ ان کے بیٹھتے ہی پنچایت کا آغاز کیا جا چکا تھا۔ دوسری طرف سے مطالبہ رکھا گیا تھا کہ ہم ونی کے بجائے پیسے دے سکتے ہیں، مگر اسی وقت ذوالفقار خانزادہ گرج کر بولے، ہمارے بیٹے کا خون اتنا سستا نہیں کہ ہم پیسوں کے عوض اس معاملے کو رفع دفع کر دیں۔ تم نے ہمارے بیٹے کا قتل کیا ہے، اتنی آسانی سے معافی نہیں ملے گی۔ تم اپنے گھر کی عورت ہمیں دو گے، نہیں تو ہم یہاں خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ ذوالفقار خانزادہ کی دھاڑ پر پوری پنچایت میں سناٹا چھا گیا۔ سرپنچ ذوالفقار صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے تحمل سے بولے، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں خانزادہ صاحب، لیکن بہتر ہوگا کہ معاملہ کچھ پیسوں کے عوض نپٹا لیا جائے۔ ان کے خاندان میں کوئی بالغ عورت نہیں ہے۔ جب اچانک داجی بول پڑے، کیوں، رحیم کی چھوٹی بیٹی حور، وہ کون ہے؟ کیا وہ ان کا خون نہیں؟ رحیم صاحب فوراً ہی ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور تکلیف سے تڑپ کر بولے، خانزادہ صاحب، خدا کے لیے ہمارے حال پر رحم کھائیں۔ ہم اپنی پوری جائیداد آپ کو دینے کو تیار ہیں، مگر ایسا نہ کریں۔ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، صرف 13 سال کی ہے، خدا را اس کی ذات پر رحم کھائیں۔ عارم خانزادہ جو ابھی تک خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھا تھا، اس نے حیران ہو کر سر اٹھایا۔ وہ فوراً ہی اس بات پر اعتراض کرنا چاہتا تھا کہ وہ اتنی چھوٹی لڑکی کو ونی میں نہیں لے گا، مگر اسی پل ذوالفقار خانزادہ نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا، جس کا مطلب تھا کہ خاموش رہو۔ داجی دوبارہ بولے تھے، ہمارا بیٹا بھی صرف 20 سال کا تھا، جوانی کی دہلیز پر اس نے ابھی قدم ہی رکھا تھا، اور تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹے کو مار دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمارے چھوٹے کا خون سستا تھا؟ فیصلہ ہو چکا ہے، ہم رحیم کی چھوٹی بیٹی کو ونی میں مانگتے ہیں، ورنہ گاؤں کے اندر
خون ریزی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہم کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کی پوری بستی کو اجاڑ کر رکھ دیں گے۔ دادا جی کی بات پر چمگوئیاں ہونا شروع ہو گئیں اور ایک پل میں ہی پوری کایا پلٹ چکی تھی۔ گاؤں والے فوراً ہی رحیم کے خلاف ہو گئے تھے اور سب نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم اس حق میں ہیں کہ رحیم اپنی چھوٹی بیٹی دے دے، کیونکہ ہم گاؤں میں خون ریزی نہیں چاہتے۔ معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا، معاملے کو زیادہ ہم طول نہیں دینا چاہتے۔ گاؤں والوں کی باتیں اور داجی ذوالفقار خانزادہ کا مطالبہ دیکھ کر سرپنچ نے فوراً ہی فیصلہ سنا دیا کہ نکاح ابھی کے ابھی ہوگا۔ انہوں نے فوراً ہی ذوالفقار خانزادہ سے سوال کیا تھا کہ آپ نکاح کے لیے کس مرد کو آگے کریں گے۔ انہوں نے فوراً ہی عارم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو 26 سال کا خوبصورت نوجوان تھا۔ کہنے کو وہ انکار کر سکتا تھا، لیکن اب بھی عزت کا معاملہ تھا۔ خانزادہ جان سے جا سکتے تھے لیکن عزت سے نہیں، اور اس نے دل میں ہی یہ فیصلہ کیا کہ ہاں، وہ اس لڑکی سے نکاح ضرور کرے گا، مگر اس کو ورنی ہونے والی سزاؤں سے ضرور بچائے گا۔ وہ ظالم نہیں تھا، وہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح ہی رحم دل تھا۔ فوراً ہی مسجد کے مولوی صاحب کو بلا لیا گیا۔ رحیم صاحب کی بیٹی حور لال دوپٹے میں پنچایت میں پہنچ گئی تھی۔ عارم خانزادہ کی نکاح چھوٹی سی حور پر پڑی، جسے دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا کہ وہ محض 13 سال کی ہے، اس سے زیادہ اس بچی کی عمر نہیں۔ فوراً ہی مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھانا شروع کیے۔ عارم کو یہ سب معیوب لگ رہا تھا، مگر وہ اپنے خاندان کے لیے بے حد مجبور تھا۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات دہرائے، نہ جانے کیوں اسے پہلی بار اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دنیا کے لیے یہ نکاح ایک عام بات تھی، مگر وہ ہمیشہ سے ہی نکاح کو اہمیت دیتا آیا تھا۔ قبول ہے بولتے وقت اس نے اپنے دل میں ارادہ باندھ دیا کہ وہ اس لڑکی کو ہر سرد گرم سے بچائے گا۔ ہاں، مگر وہ اس خون کو کبھی نہیں بھولے گا جو اس کے بھائی کا بہا تھا۔ وہ لڑکی تمام جملہ حقوق اس کے نام کر چکی تھی۔ رحیم صاحب بہت بری طرح رو رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے عارم خانزادہ کو اس شخص پر رحم آیا، مگر پھر اس نے اپنے دل کو اس آدمی کی طرف سے سخت کر لیا، کیونکہ جب ان کا بھائی اس دنیا سے گیا تھا تو ذوالفقار خانزادہ بھی اسی طرح تڑپ کر رو رہے تھے۔ فوراً ہی رخصتی کا وقت سر پر آن پہنچا۔ رحیم صاحب خود حور کو سینے سے لگائے زاروں قطار رو رہے تھے، جب ذوالفقار خانزادہ عارم کو دیکھتے ہوئے بولے، بس بہت ہو گیا تماشا، اپنی بیوی کو اس آدمی سے دور کرو اور گاڑی کی طرف چلو، ہمیں اب حویلی پہنچنا ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اپنے باپ کے ہمراہ اپنے قدم گاڑی کی طرف بڑھا دیے، جبکہ عارم نے ایک نگاہ چھوٹی سی حور پر ڈالی جو مسلسل اپنے باپ کے سینے سے لگی زاروں قطار رو رہی تھی۔ شاید وہ بچی بھی جان چکی تھی کہ اب وہ ایک ایسی جہنم میں جا رہی ہے جہاں سے اس کی واپسی نہیں ہے، سوائے موت کے۔ اس حویلی سے اب وہ نہیں نکل سکتی۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی، اپنے قدم رحیم صاحب کی طرف بڑھائے اور حور کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک نظر اس نے رحیم صاحب پر ڈالی تھی جو ہاتھ جوڑ چکے تھے، مگر وہ انہیں نظر انداز کیے حور کی کلائی کو تھام کر اب گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے باپ دادا کی گاڑیاں آگے بڑھ چکی تھیں، صرف گارڈز ہی اس کی گاڑی کے قریب کھڑے تھے۔ اس نے پھینکنے والے انداز میں حور کو فرنٹ سیٹ پر دھکیلا اور پھر گھوم کر سٹیئرنگ وہیل کو سنبھال لیا۔ اس نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے سٹارٹ کیا اور حویلی کے روڈ پر ڈال دیا تھا۔ وقتاً فوقتاً حور کی سسکیاں گاڑی میں گونج رہی تھیں۔ چاہتا تو وہ اس لڑکی کو اپنے باپ کے حوالے کر سکتا تھا کہ وہ اس کو حویلی لے جائیں، مگر اسے معلوم تھا کہ اگر حور پہلے حویلی پہنچ گئی تو اس کی مورے، اس کی چچی تائی اس لڑکی کو جان سے مار دیں گی۔ اسی لیے اس نے حور کو اپنے ساتھ ہی رکھا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے حویلی کے پورچ میں رکی۔ وہ باہر آیا تو اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ کہنے کو اب اسے مردان خانے کی طرف جانا تھا، کیونکہ جب بھی وہ لوگ کسی پنچایت کے فیصلے سے آتے تھے تو سب بیٹھ کر
اس معاملے پر بات چیت کیا کرتے تھے، مگر ابھی اس کے ساتھ ایک ذمہ داری تھی جسے صحیح سلامت اپنے کمرے تک پہنچانا تھا۔ وہ گھوم کر حور کی طرف آیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے اپنی چوڑی ہتھیلی حور کی طرف بڑھائی اور سنجیدہ لہجے میں بولا، لڑکی نیچے آؤ، میں تمہیں کمرے تک پہنچا دوں، اس کے بعد مجھے مردان خانے جانا ہے۔ جبکہ حور نے جالی دار دوپٹے سے اس کا خوبرو چہرہ دیکھا، وہ بہت زیادہ سہم چکی تھی۔ وہ گھبرا کر بولی تھی، آپ مجھے کمرے میں لے جا کر ماریں گے؟ اس کا لہجہ معصومیت سے لبریز تھا۔ عارم نے ایک نگاہ اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی تھی جو جالی سے نمایاں ہو رہا تھا۔ اس نے سر کو نفی میں ہلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جب تک تم میرے سائے میں ہو تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، اور رہی میری بات تو میں عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کی ہمیشہ خلاف رہا ہوں۔ تم پریشان نہ ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے حور کی کلائی کو تھام لیا اور بہت احتیاط سے اس نے حور کو نیچے اتارا۔ وہ بہت زیادہ سہم چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اپنے کانوں پر اسے یقین ہی نہیں آیا، مگر پھر گھر سے نکلتے وقت جو اس کی ماں نے ہدایت کی تھی اسے یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ سیدھا اسے حویلی کے اندر لے آیا۔ زنان خانے میں داخل ہوتے ہی اس کی مورے، چچی اور تائی اور بی جان فوراً اس کی طرف لپکی تھی۔ یقیناً وہ اس لڑکی کے انتظار میں تھی، مگر اسے عارم خانزادہ کے ساتھ کھڑا دیکھ کر سب عورتوں نے اپنے قدم وہی جما لیے۔ وہ اپنی مورے کو دیکھتے ہوئے بولا، مورے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لڑکی پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ بات میں نے آپ کو بہت تحمل سے سمجھائی ہے، اب مجھے دوبارہ اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ بول کر وہ ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ حور کو لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ حور حیران تھی کہ یہ شخص اس پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی ماں نے تو کہا تھا کہ تمہیں بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تم پر بہت انگلیاں اٹھائی جائیں گی، بہت سی تکلیفیں تمہیں برداشت کرنی ہوں گی، مگر تم یہ سب کچھ سہن کرنا، کیونکہ اگر تم نے آج یہ تکلیفیں برداشت کر لیں تو کل تمہاری وہاں جیت ہو جائے گی۔ مگر یہ شخص تو اسے تکلیف برداشت کرنے کا موقع نہیں دے رہا تھا، بلکہ کسی ڈھال کی مانند اس کے آگے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے عارم خانزادہ کو دیکھا اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی حور نے چاروں جانب نگاہ گھمائی۔ وہ کمرہ نہیں بلکہ کسی ریاست کے شہزادے کا محل لگ رہا تھا۔ عارم نے گہری سانس لی، اپنا رخ چھوٹی سی حور کی جانب کیا اور سنجیدگی سے بولا، آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں تھوڑی دیر میں مردان خانے سے آتا ہوں۔ دروازہ میں باہر سے بند کر رہا ہوں، چابی میرے پاس موجود ہے، اسی لیے فکر نہیں کرنا، اور ہو سکے تو صرف کمرے تک محدود رہنا جب تک میں نہیں آ جاتا۔ یہ بول کر وہ ٹھہرا نہیں بلکہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کمرے میں اب صرف حور رہ گئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اب پورے کمرے کا تائرانہ جائزہ لیا۔ سامنے دیوار پر عارم خانزادہ کی ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس کے کانوں میں اس کی بی جان کی آواز گونج رہی تھی، جو اکثر اس کے بال سنوارتے ہوئے بولتی تھی، تمہارے لیے تو کوئی شہزادہ آئے گا جو تمہیں اپنے ساتھ بیاہ کر لے جائے گا۔ کیا یہ وہی شہزادہ تھا؟ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ اس نے فوراً ہی اپنے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا دیا اور کمرے میں رکھے صوفے پر اپنے پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ عارم نیچے آیا تو اس کی مورے فوراً اس کے سامنے آئی اور اس کو دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی تھی، کیا مطلب ہے تمہاری باتوں کا؟ تم اس لڑکی کی اتنی طرفداری کیوں کر رہے ہو؟ وہ ونی میں آئی ہے، اسے یہ سب برداشت کرنا ہوگا۔ گھر کے کام ہماری مار اور ہمارے تانے، تم اس طرح اس کی ڈھال نہیں بن سکتے عارم۔ تم یہ غداری کر رہے ہو، خاندان کے ساتھ بغاوت کرنا چاہتے ہو۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ دھیما سا مسکرایا، ان کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولا، نہیں ماں جی، میں مر سکتا ہوں لیکن خاندان کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتا۔ ہمارے خون میں وفا شامل ہے۔
आप परेशान ना हो, मगर हाँ, अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दें कि मैं उस मासूम सी बच्ची पर किसी को गलत निगाह भी डालने दूंगा। कहती है ना आप, औरत सर का ताज होती है, पैर की जूती नहीं। तो फिर आप इस बात को जहन नशीन कर लें, वो लड़की मेरे सर का ताज है, पैर की जूती नहीं। वो बोलकर ठहरा नहीं था, बल्कि अपने कदम अब उसने मर्दान खाने की जानिब बढ़ा दिए थे, जहां पर खानदान के तमाम मर्द मौजूद थे। और वो जैसे ही मर्दान खाने में दाखिल हुआ तो उसके दाजी ने कुर्बान होने वाली निगाह उसके वजूद पर डाली। वो कलाम का शहजादा था, उनकी जान था, उनके दिल की धड़कन था। उन्होंने फौरन ही अपनी बाहें वाह कर दी थी, जिसकी वजह से वो मुस्कुराते हुए उनके बगल में ही बैठ गया। अब ये लोग रहीम साहब के बारे में बातचीत कर रहे थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात देर तक वो मर्दान खाने में ही अपने दादा के पास मौजूद रहा। छोटे भाई की वफात के बाद उसके दादा बहुत टूट गए थे और आरिम ही था जो उन्हें संभाल सकता था। इसी वजह से उसने एक लम्हे के लिए भी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा। रात 10 बजे के करीब वो मर्दान खाने से निकलकर जनान खाने में आया। इरादा अब उसका कमरे में आराम करने का था। उसने अपने कफ कोहनी तक चढ़ा लिए। अभी वो अपने कदम आगे बढ़ाता जब अचानक उसके दिमाग में हूर का ख्याल आया। वो दोपहर से उस कमरे में कैद थी। यकीनन उसने कुछ खाया नहीं होगा। वो तो मर्दों के साथ रात का खाना तनावुल कर चुका था। उसने अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाए। खानजादा खानदान में मर्द अगर किचन में जाएं तो ये उनकी शान के खिलाफ होता है, मगर आरिम उन सब खानजादा से मुख्तलिफ था। उसके सीने में दिल था, ना कि पत्थर। वहां मुलाजमा रोजमर्रा के काम में मसरूफ थी। जब वो किचन के दरवाजे पर खड़े होकर गंभीर आवाज में बोला, खाने के लिए ट्रे सजाओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। उसके हुक्म की फौरन तामील की गई और थोड़ी ही देर बाद मुलाजमा ट्रे सजाकर बाहर आ गई। उसने ट्रे अपने हाथ में ली थी और अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ा दिए थे। वो कमरे के पास पहुंचा तो कमरा अभी तक लॉक था, जैसे वो करके गया था। उसने चाबी अपनी जेब से निकाली और की होल में डालकर दरवाजा अनलॉक किया। वो अंदर दाखिल हुआ तो निगाहें सामने नमाज पढ़ती हूर पर गई। उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। वो खाने की ट्रे पीछे मेज पर रखकर वहीं सोफे पर बैठ गया, जबकि हूर शायद ईशा की नमाज अदा कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने दुआ मांगकर चेहरे पर हाथ फेर लिया। सर मोड़ कर देखा तो आरिम उसी की तरफ मुतवज्जो था। वो यकदम घबरा गई और सहम कर वहीं बैठ गई। जब वो मुस्कुराते हुए उसे पास आने का इशारा करने लगा, चंद लम्हे के लिए तो वो वहीं जम कर बैठी रही, मगर फिर जैसे ही उसकी निगाह खाने की मेज पर गई तो उसकी बाछें खिल उठी थीं। सुबह से उसने एक नवाला भी मुंह में नहीं डाला था और अब सामने खाने को देखकर वो अपनी जगह से फौरन ही उठी और बिल्कुल उसके पांव के करीब जाकर बैठ गई। इरादा उसका खाना खाने का ही था, मगर अभी उसने हाथ बढ़ाए ही थे जब अचानक उसे झिझक महसूस हुई। उसने फौरन अपने हाथों को खींच लिया और उसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखने लगी कि अगर वो इजाजत दे तो वो तभी कुछ खाएगी। उसने मुस्कुराते हुए जैसे ही उसे खाना खाने के लिए बोला तो वो फौरन ही ट्रे अपनी तरफ खींच चुकी थी और बिरयानी प्लेट में डालकर जल्दी जल्दी खाने लगी। जल्दी खाने की वजह से अचानक उसे फंदा लग गया जब आरिम सर नफी में हिलाते बोला, खाना कहीं भागा तो नहीं जा रहा लड़की, आराम से खाओ। पानी का ग्लास उसके लबों से लगाते वो बेहद नरमी से बोला तो हूर की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपना हाथ रोककर आरिम के चेहरे को देखते सवालिया बोली थी, अम्मा तो बोल रही थी कि आप मुझे मारेंगे, सजा देंगे, कमरे से बाहर निकाल देंगे। हो सकता है आप मुझे सर्वेंट क्वार्टर में ठहराएं, मगर आप तो इतनी नरमी दिखा रहे हैं। आप कौन हैं? आप क्या मेरे शौहर नहीं हैं? उसके लहजे में हैरानगी थी। आरिम धीमा मुस्कुराया। उसके सर पर हमेशा की तरह हाथ रखते वो मोहब्बत से बोला, मैं ही तुम्हारा शौहर हूं और तुम्हारा साहिबान। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं और मर्दों में से नहीं हूं।
जो औरतों को पैर की जूती समझकर उस पर जुल्म और सितम ढाते हैं। तुम्हारे भाई ने गलत किया, उसकी सजा मैं उसे लाजमी दूंगा, लेकिन तुम बेकसूर हो, तुमने कुछ नहीं किया, इसीलिए तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो कि मैं तुम्हें मारूंगा। हाँ, लेकिन तुम अपना आप संभाल कर रखना, यहां पर तुम्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई बड़ा तुम पर हाथ उठाता है तो तुम पलटकर एक लफ्ज नहीं कहोगी, लेकिन मुझे आकर जरूर बताओगी। उसने फरमाबरदारी से सर को हल्की सी जंबिश दी और एक बार फिर खाने की तरफ मुतवज्जो हो गई। आरिम ने सर को नफी में हिलाया और अपना मोबाइल इस्तेमाल करने लगा, जब अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक देकर उसके चचा दाखिल हुए। वो जो दुपट्टे से लापरवाह खाने में मगन थी, फौरन ही दुपट्टा अपने सर पर फैलाकर अपनी जगह खड़ी हो गई और आरिम के पीछे होकर बैठ चुकी थी। वो बिल्कुल सोफे में छुप गई थी। आरिम ने एक संजीदा निगाह अपने चाचू पर डाली और सवालिया बोला, सब खैरियत, आप यहां? वो एकदम गुस्से से धाड़े, तुम्हारी चच्ची मुझे क्या बता रही हैं कि तुम इस लड़की को अपनी आगोश में छुपाते फिर रहे हो? आरिम, इस बात को ना भूलो कि ये लड़की वन्नी में आई है। ये इस खानदान की सिर्फ और सिर्फ नौकरानी है, इससे ज्यादा इसकी कोई कीमत नहीं, और तुम इसे यहां बिठाकर बिरयानी खिला रहे हो। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर गुजरे, जबकि हूर बुरी तरह सहम चुकी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कहीं गायब हो जाए, मगर उसके पास सिवाय यहां छुपने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आरिम ने एक संजीदा निगाह अपने चाचू पर डाली और अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, पहली बात कि आप मेरी बीवी के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप आज तो मेरे कमरे में आकर इस तरह मुझ पर धौंस जमा चुके हैं, लेकिन आइंदा के बाद ऐसा करने से गुरेज करिएगा, क्योंकि मुझे खुद पर धौंस जमाने वाले लोग पसंद नहीं हैं। उन्होंने एक निगाह आरिम पर डाली और सख्त लहजे में बोले, मैं जुल्फिकार भाई से बात करूंगा, वही तुम्हें संभालेंगे, क्योंकि तुम किसी और की बात तो सुनते नहीं हो। ये बोलकर वो ठहरे नहीं थे, बल्कि वहां से निकलते चले गए। उनके जाने के बाद उसने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। गर्दन मोड़कर देखा तो वो सोफे में घुस जाना चाहती थी। वो फौरन बोला था, बाहर आओ, इस तरह बैठने से मसाइल हल नहीं होते। वो घबरा कर बाहर निकली। चेहरा आंसुओं से तर था। उसकी घबराहट देखकर उसने सर को नफी में हिलाया। कदम बा कदम उसके पास गया और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, अगर हमेशा इसी तरह डरती रहोगी तो कभी भी दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाओगी। खास करके मेरे साथ तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं। जब तक मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। वो रोते हुए बोली थी, वो मुझे मार देते, आप कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए मैं डरकर सोफे के पीछे हो गई थी ताकि वो मुझे छू ना सकें। आरिम धीमा सा मुस्कुराया और उसे खाने की तरफ इशारा करते हुए बोला, जाओ अपनी प्लेट पूरी करो, मैं अभी आता हूं। ये कहते ही वो बाहर चला गया था, जबकि हूर ने उसे तशक्कुर भरी निगाहों से देखा था। उसने सुन रखा था कि वन्नी में आई हुई लड़कियां सिवाय मौत के घाट उतरती हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। उनका शौहर उन्हें दरिंदगी से मारता है, अपनी हविस का निशाना बनाता है, सारी सारी जिंदगी उन्हें तकलीफें पहुंचाता है। मगर जो शख्स उसके नसीब में आया था, वो शख्स तो उसे सारी दुनिया से छुपा रहा था, सबसे बचाकर अपनी आगोश में समेट रहा था। उसने बेसाख्ता आसमान की जानिब देखा और अपने अल्लाह से दुआ की कि सारी जिंदगी वो उसकी आगोश में रहे, उसी के साथ रहे, उसी की जिंदगी हमेशा उसके संग गुजरे। मगर वो मासूम जानती नहीं थी कि उसकी जिंदगी का आने वाला वक्त में कितनी मुश्किलात उसे घेरने वाली हैं। आरिम सीधा दादा जान के कमरे में आया। उसका इरादा उनसे दो टोक बात करने का था। वो अपनी मोरे को तो पहले ही आगाह कर चुका था, लेकिन मर्दों में भी ये बात अच्छे से बावर करवा देना चाहता था कि उसकी बीवी उसकी है, वो जो करेगा सो करेगा,
اس کے علاوہ اس کی بیوی کی طرف کوئی غلط نگاہ بھی نہیں دیکھے گا۔ مدعا جان کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ ان کے ہاتھ میں موجود تصویر پر گئی، جو اس کے چھوٹے بھائی کی تصویر کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لیے اس سے باتیں کر رہے تھے۔ آہٹ پر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی ان کا لختے جگر کھڑا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتا دادا جان کے پاس پہنچ گیا۔ بہت احتیاط سے ان کے ہاتھ سے وہ تصویر لے کر اس نے ایک طرف کونے میں رکھ دی اور انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، دا جان، کیوں خود کو اتنی اذیت دے رہے ہیں؟ خدا کو یہی منظور تھا، اور آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں۔ اس رب نے اگر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو وہ ہمیں لینے پر بھی قادر ہے، پھر کس لیے آپ اتنے آنسو بہا کر خود کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ دادا جان نے اپنی آنکھیں صاف کی اور گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے بولے، تم اس وقت یہاں؟ تم تو اپنے کمرے میں آرام کرتے ہو۔ اس نے ایک نظر دادا جان پر ڈالی اور دھیمی آواز میں بولا، آپ کے چھوٹے بیٹے نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا ہے۔ دادا جان، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے چھوٹے کی موت نے ہم سب کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہم سب دکھ کے کیسے مراحل طے کر رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، مگر میں پھر بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ ابھی چاچو میرے کمرے میں آ کر مجھے ذلیل کر کے گئے ہیں کہ تم نے سب پر یہ حکم کیوں جمایا ہے کہ کوئی تمہاری بیوی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ لیکن دادا جان، میں آپ کو دو ٹوک انداز میں یہ بات بول رہا ہوں کہ میری موجودگی میں اور میری غیر موجودگی میں حور کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اس کی عمر صرف 13 سال ہے، وہ بہت چھوٹی ہے اور ان سب چیزوں سے ناواقف ہے۔ اس کے بھائی نے غلطی کی ہے اور میں اس کے بھائی کی بوٹی بوٹی کروں گا، لیکن اپنی بیوی کی طرف غلط نگاہ سے کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ میری بیوی ہے اور اب ہمیشہ میری رہے گی۔ اس کی بات سن کر دادا جان بالکل خاموش ہو گئے۔ کمرے میں بالکل سناٹا چھا چکا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی دادا جان دھیما مسکرائے اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، دادا کی جان، میرے کلام کا شہزادہ، میں جانتا ہوں تم کتنے غیرت مند ہو، لیکن ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو سزا ملتی ہی ہے۔ مگر تم چاہتے ہو کہ اگر تمہارے علاوہ تمہاری بیوی کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کوئی تمہاری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ میں سب مردوں کو منع کر دوں گا کہ کوئی تمہاری زندگی میں مداخلت نہ کرے، باقی تم اپنی مورے کو سمجھا دو۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ جان چکا تھا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ دادا جان کا حکم ہی حویلی میں قائم تھا۔ اس نے ان کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا اور ان کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اب آپ آرام کریں، آپ اتنا زیادہ افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی طبیعت ویسے ہی کچھ ٹھیک نہیں۔ انہوں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، عارم، تم نے سیاست کا کیا سوچا ہے؟ شہر کب تک جاؤ گے؟ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، 1 ہفتے بعد شہر جانے کا ارادہ ہے، میری ایک میٹنگ بھی ہے، وہیں پر میں تمام معاملات طے کر لوں گا۔ وہ سیاست میں آنے والا تھا، اس بات کا اعلان داجی کر چکے تھے، مگر اب وہ براہ راست سب کے سامنے آنا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا سیاست میں آنا کتنا مشکل ہونے والا ہے۔ اس کی واپسی کمرے میں رات 1 بجے ہوئی۔ وہ صوفے پر ہی لیٹی گہری نیند میں تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کے معصوم چہرے کو دیکھا، پھولے ہوئے گال، چھوٹا سا گول چہرہ، چھوٹی سی ناک، خوبصورت گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند ہونٹ۔ وہ لڑکی 13 سال کی عمر میں بے حد خوبصورت اور بے حد حسین تھی۔ وہ سر جھٹک کر بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ رات کترا کترا کر کے پگھلتی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ وہ فجر میں ہی بیدار ہو چکی تھی۔ اس کی اماں نے اسے یہ عادت بہت اچھی منتقل کی تھی کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ اس کے سونے کا خیال کر کے اس نے بہت دھیمی آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت کی
और सुबह से ही वो पूरे कमरे में घूमती फिर रही थी। अब सुबह के 8 बज चुके थे और उसे शदीद भूख लग रही थी, मगर कमरे से बाहर जाने की उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। उसने एक निगाह अपने सोए हुए शौहर पर डाली और कुछ सोचकर उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। दिल हौले हौले लरज रहा था, मगर भूख की शिद्दत ने उसे रुकने नहीं दिया। उसने हिम्मत करके हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे हिलाते हुए बोली, साईं जी बेदार हो जाएं, सुबह हो चुकी है। जबकि वो बहुत गहरी नींद सो रहा था, माथे पर शिकन पड़े हुए थे। उसने घूर कर इसको देखा, आखिर वो कितना सोता था। कुछ सोचकर उसने करीब पड़े पानी के गिलास को हाथ में लिया और चंद छींटें उसके चेहरे पर मारते हुए बोली, प्लीज जाग जाएं, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। वो बहुत ही मासूमियत से बोलकर उसके करीब बैठ चुकी थी। पानी के छींटे जैसे ही उसके चेहरे पर लगे, उसकी आंख खुल चुकी थी। एक लम्हे के लिए उसका दिल किया कि जिस शख्स ने भी ये करने की जुर्रत की है उसका सर तोड़ दे, मगर सामने उसका मासूम चेहरा देखकर उसने अपना सर झटक दिया और बेड क्राउन से लगाते हुए बोला, क्या हो गया, क्यों परेशान कर रही हो? वक्त देखा है, सुबह के 8 बज रहे हैं। वो थोड़ा सख्ती से बोला तो हूर घबरा कर अपनी जगह से खड़ी हो गई और सहमी हुई आवाज में बोली, मुझे भूख लग रही थी, आप सो जाएं, अब जब उठ जाएंगे तो मैं खा लूंगी। ये कहते ही वो वापस सोफे के पास जाने लगी तो उसने इसका हाथ थाम लिया। वो समझ गया था कि उसकी टोन से वो सहम गई है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे लड़की, मेरे कहने का मतलब था कि तुम मुझे इतनी सुबह क्यों जगा रही हो? मैं अभी उठ जाता। मगर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवा देता हूं। ये कहते ही उसने बराबर में रखे टेलीफोन से कॉल करके नीचे इत्तला दी थी कि खाने की ट्रे कमरे में ही पहुंचा दी जाए। अभी उसका इरादा और थोड़ी देर सोने का था। रात को देर से सोने की वजह से अभी उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, मगर अभी खाना भी उसने ही रिसीव करना था, इसीलिए वो जाग रहा था। वो उसके मासूम चेहरे को अपने दिल के अंदर बसाते हुए बोला, तुम जल्दी उठ जाती हो। उसने जोरों शोर से सर को जंबिश दी और उसको देखते हुए बोली, मैं तो फजर से जागी हुई थी, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, उसके बाद मैं आपके उठने का इंतजार करने लगी, मगर आप उठने का नाम नहीं ले रहे थे। वैसे क्या आप फजर की नमाज नहीं पढ़ते? वो एकदम सवाल गो हुई तो आरिम को शर्मिंदगी सी महसूस हुई। वो झिझकते हुए बोला, मैं पढ़ता हूं, बस कल रात थोड़ी देर हो गई थी, इसीलिए छूट गई। कोई बात नहीं, मगर मैं जोहर में कज़ा पढ़ लूंगा। उसने फौरन ही ताइदी अंदाज में सर हिला दिया और उसकी जानिब देखते हुए बोली, मेरी अम्मी बोलती थी कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते अल्लाह के नज़दीक वो लोग बहुत बुरे होते हैं, और जो लोग नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ताला अर्श पर उनका अपने फरिश्तों के साथ बैठकर जिक्र करते हैं। मुझे मालूम है मेरे अल्लाह ताला मेरा भी जिक्र करते होंगे, क्योंकि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। अब आप भी लाजमी 5 वक्त की नमाज पढ़ना। वो बहुत मासूमियत से उसके चेहरे को देखते हुए बोल रही थी। पहले दिन ही वो उसको देखकर समझ गया था कि ये लड़की मजहबी है। कहने को वो सिर्फ 13 साल की थी, मगर उसकी बातों से वो समझ चुका था कि उसकी माँ ने उसका ब्रेन वॉश कुछ इस अंदाज में किया है कि वो गलत राह पर बिल्कुल भटक नहीं पाए। उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो अपनी सोचों को झटक कर बिस्तर से उठ गया और दरवाज़ा खोला तो सामने ही मोरे और मुलाजमा खड़ी थी। यकीनन उसकी मोरे इसीलिए आई थी ताकि इस लड़की को अच्छे से सबक सिखा सके। उसने माँ को देखकर दरवाज़ा बंद कर दिया था और खुद बाहर आ गया। उसकी मोरे कमरे के अंदर जाने का इरादा रखती थी, मगर उसे कमरे का दरवाज़ा बंद करता देखकर उन्होंने मुंह बसोर लिया और अपने बेटे को देखते हुए बोली, तुम बेवजह इस लड़की को अपने सर पर बिठा रहे हो। मैं तुम्हें बता रही हूं, बाद में बहुत पछताओगे। वो हमारे दुश्मन की बेटी है, तुम इस तरह उसके साथ लाड नहीं कर सकते। उसने एक मुस्कुराती निगाह अपनी मां के वजूद पर डाली और हंसते हुए बोला, बिल्कुल,
मालूम है कि वो दुश्मन की बेटी है और हमारे लिए वो बिल्कुल भी काबिले इज्जत नहीं है। मगर मैं उसके साथ कोई लाड नहीं कर रहा मोरे। मैंने कल भी आपसे कहा था कि वो अब मेरे निकाह में है। आप जानती हैं मैं अपनी चीज़ों को लेकर कितना ज़्यादा जज्बाती हो जाता हूँ। फिर आप क्यों इस तरह से बर्ताव कर रही हैं कि मैं आपसे खफा हो जाऊं? खुदा के लिए उस लड़की का पीछा छोड़ दें। अगर आप अपने बेटे से प्यार करती हैं तो उसे माफ़ कर दें। जिसने कत्ल किया है, जो गुनहगार है, उसको जल्द सज़ा मिलेगी। आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें। वो बहुत तहम्मुल से बोला था, जबकि मोरे की आंखों में आंसू आ गए थे और वो बेख्तियार अपने बड़े बेटे के सीने से लग चुकी थी। वो जानता था कि उसकी माँ बेहद इमोशनल हो चुकी है, इसीलिए इस तरह की हरकतें करके खुद को मसरूफ करना चाहती है। मगर वो अपनी माँ को बिल्कुल भी गुमराही के रास्ते पर गामजन नहीं होने दे सकता था। उसने मुलाजमा को इशारा कर दिया था कि वो नाश्ता अंदर ले जाए, जबकि वो अपनी माँ को लेकर उनके कमरे की तरफ बढ़ चुका था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। उस लड़की को आए हुए हवेली में 3 दिन बीत गए, मगर इन 3 दिन के दरमियान वो आरिम के कमरे से बाहर नहीं आई थी, और ये करने के लिए भी आरिम नहीं कहा था। वो इस लड़की को बिल्कुल किसी के सामने आने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि अभी वो खतरे में है। अभी सब बहुत ज़्यादा गुस्से में है और इस गुस्से का निशाना वो लड़की ही बनेगी। इसीलिए उसने ज़्यादातर उसको कमरे में ही रखा। वो डेरे से वापस घर आया तो सीधा कमरे में ही आ गया। इन 3 दिन के दरमियान उस लड़की से न जाने क्यों उसका दिल बहुत लग गया था। वो लड़की इतनी मासूम सी थी कि वो उसकी बातें इतनी गौर से सुनता कि चंद लम्हे तो वो ये भूल जाता कि वो वाकई दुश्मन की बेटी है और उसके लिए सिर्फ एक वन्नी में आई लड़की है। मगर न जाने क्यों वो बदल रहा था। उस लड़की की संगत उसे तब्दील कर रही थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो हमेशा की तरह नमाज पढ़ने में ही मगन थी। वो सीधा जाकर सोफे पर बैठ गया। नमाज पढ़ने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। उसकी आंखें बंद थीं। यकीनन वो इस बात को महसूस नहीं कर पाई थी कि कमरे में उसके अलावा भी कोई और मौजूद है। उसने बेसाख्ता हाथ बुलंद किए और नम लहजे में अपने अल्लाह को पुकारते हुए बोली, ए रब्बे मुस्तफ़ा, ए दो जहां के मालिक, ए मेरे खालिक के खुदा, ए याकूब और यूसुफ के मालिक, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे शौहर को लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया मेरे सर पर सलामत रख। या अल्लाह उनको बहुत तरक्की दे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें बहुत खुशियों से नवाजना, वो जो चाहते हैं उनको हासिल होता रहे। या अल्लाह पाक मुझ पर से हर बुरी मुसीबत को दूर कर दे। मैं किसी का जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे मेरी माँ से मिलना है। या अल्लाह तू मुझे मेरी माँ से मिला दे। काफ़ी देर तक वो दुआ मांगती रही, जबकि आरिम उसको गहरी निगाहों से देख रहा था। उसने दुआ मांगकर चेहरे पर हाथ फेरा तो अचानक ही कमरे में आरिम की आवाज़ गूंजी, अपनी माँ को याद कर रही हो? उसने पलट कर देखा तो हैरान हो गई और सवालिया बोली, साईं जी आप कमरे में कब आए? वो उसको देखकर खिल उठी थी और भागकर उसके बराबर में बैठ गई थी। चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। आरिम ने मुस्कुराती निगाहों से उसके खूबसूरत चेहरे को अपने दिल के अंदर बसाया था और उसको देखते हुए बोला, जब आप अपने अल्लाह से राज़ो न्याज कर रही थी तभी मैं आया था। वैसे क्या तुम अपनी माँ को याद कर रही हो? उसने ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिलाया और आरिम को देखते हुए बोली, मुझे अम्मा बहुत याद आ रही हैं। मैं सुबह उठती थी तो वो मुझे अपने हाथों से नाश्ता करवाती थी। दोपहर का खाना भी मैं उनके हाथ से खाती थी और रात का खाना मैं बाबा के साथ खाती थी। मगर अब तो मैं उन दोनों की शक्ल देखने को तरस गई हूँ। वो लोग मुझे बहुत याद आ रहे हैं। अम्मा ने कहा था कि मैं अब कभी उनसे नहीं मिल पाऊंगी, मगर मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मैं अपनी अम्मा से दोबारा ज़रूर मिलूं। मैं उनके बगैर कैसे रह सकती हूँ? मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ ना, और छोटे बच्चे तो हमेशा अपनी माँ के पास रहते हैं। वो बेहद मासूमियत से बोली थी,
जबकि आरिम ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया और खला में देखने लगा। अचानक ही हूर ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा और उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए सवालिया बोली थी, साईं जी, एक बात पूछूं? उसके हाथ का लम्स महसूस करके वो धीमा मुस्कुराया और सर इस बात में हिलाते हुए बोला, पूछो, क्या बात है? चंद लम्हे तो वो खामोश रही और फिर सर झुकाकर बोली, आप क्या उदास हो? उसने हैरत से उसकी जानिब देखा, क्योंकि उसे बिल्कुल भी इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वो सवालिया बोला था, क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उदास हूं? वो अचानक बोली, निकाह के अगले दिन मैंने आपकी आंखों में चमक देखी थी। अगले दिन थोड़ी सी चमक कम थी, मगर आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। कुछ तो वजह है। आज आपके चेहरे पर एक बार भी मुस्कुराहट नहीं आई। उसकी बात सुनकर वो चंद लम्हे के लिए खामोश हो गया। ये बात हकीकत थी कि वो आज वाकई बहुत उदास था। वो दाजी के साथ अभी थोड़ी देर पहले कब्रिस्तान से आया था। छोटे की कब्र पर वो दोनों जब फातिहा पढ़ रहे थे तो दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दाजी की तो तबीयत भी खराब हो गई थी। उसने बहुत मुश्किल से उन्हें संभाला था। यही वजह थी कि उसके चेहरे पर बिल्कुल मुस्कुराहट नहीं आ रही थी, मगर वो जबरन मुस्कुराया था और उसकी जानिब देखते हुए बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, बस दिल थोड़ा परेशान है। तुम ये बताओ, तुमने दोपहर का खाना खाया? वो मुंह बना चुकी थी और रुख फेर कर बोली, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। आप मुझे अपनी बीवी मानते ही नहीं। जब भी आपने मुझसे अपनी तकलीफ नहीं शेयर की, आप मुझे बताएं ना कि आप वाकई उदास नहीं हैं। उसकी फिक्र देखकर आरिम के चेहरे पर भूली भटकी मुस्कुराहट आई और वो उसका हाथ थामते हुए बोला, अब तुम इतने प्यार से पूछोगी तो मेरा दिल ही बदल जाएगा। अच्छा ये बताओ, क्या खाओगी? हम दोनों कहीं बाहर चलें खाना खाने? उसकी ये ऑफर हूर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर चुकी थी। वो फौरन ही उसकी तरफ पलटी और हैरान होकर बोली, क्या वाकई आप मुझे बाहर लेकर जाएंगे? मगर घर वाले क्या सोचेंगे? वो लोग मुझे डांटेंगे। मैं कितने दिन से इस कमरे में ही कैद हूं। मुझे मालूम है जिस दिन मैं इस कमरे से बाहर गई तो कोई मुझे नहीं छोड़ेगा। रहने दें, मैं यहीं पर ठीक हूं। जब अचानक उसने उसका हाथ थामा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने पहले दिन तुम्हें यह बात समझाई थी कि तुम आरिम खानजादा की बीवी हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जब तक तुम मेरे साए में हो तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। चलो जाओ, मुंह हाथ धो, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाता हूं। जबकि वो फौरन उछलती कूदती वॉशरूम चली गई। उसने हूर की पुश्त को गौर से देखा। ये लड़की 3 दिन में ही उसे न जाने क्यों अपने दिल के बहुत करीब महसूस हो रही थी। वो बेकसूर थी और यही बात सिर्फ और सिर्फ इसको याद थी। वो बाहर आई तो वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसका हाथ थामकर कमरे से बाहर आ गया। लाउंज में मोरे, उसकी चच्ची, ताई, तीनों खवातीन बैठी थीं। बीजान भी उनके पास ही मौजूद थी। उन सब पर एक नज़र डालकर वो हूर को अपने साथ लिए बाहर की तरफ आ चुका था। वो जानता था कि उसके पीछे से बातें बनाई जाएंगी, मगर फिलहाल उसने किसी की तरफ भी मुतवज्जो होना ज़रूरी नहीं समझा। वो बाहर आया तो गार्ड्स ने फौरन ही गाड़ी तैयार की। वो उसे लिए गाड़ी में बैठ चुका था और स्टीयरिंग व्हील घुमाकर उसने गाड़ी रोड पर डाल दी थी। वो फौरन ही चहक कर बोली, हम कहाँ पर जाएंगे? मैं कौन सा खाना खाऊंगी? तो वो अचानक बोला, तुम्हारी माँ के हाथ का खाना। हूर, जो उसकी बात बहुत गौर से सुन रही थी, चंद लम्हे तो उसकी बात समझ ही नहीं पाई। फिर एकदम सवालिया बोली, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाई। क्या हम अम्मा के पास जा रहे हैं? उसकी आंखों में एकदम जुगनू से जगमगाए। आरिम ने एक निगाह उसके वजूद पर डाली और सर को हल्की जंबिश देते हुए बोला, मेरी बीवी कोई ख्वाहिश करे और मैं उसे पूरा ना करूं, ये तो मुमकिन नहीं। वो दिन में कई बार उसको ये बात जरूर बावर करवाता था कि वो उसका शौहर है और वो उसकी बीवी। न जाने क्यों ये करना उसको बहुत पसंद था,
जबकि हूर तो ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। उसने बेख्तियार उसका हाथ अपने हाथ में थामा और उस पर अपने होंठ रखते नम लहजे में बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा साईं जी, मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। आप इतने अच्छे क्यों हैं? दुनिया तो बहुत जालिम होती है, लेकिन आप तो बिल्कुल अम्मा अब्बा जैसे हैं, बहुत अच्छे, आपकी कोई मिसाल नहीं है। वो एकदम रो पड़ी थी। आरिम ने एक निगाह उसके वजूद पर डाली और धीमी आवाज में बोला, मैं खुद बहुत अफसरदा हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई अफसरदा हो। हूर उससे कुछ और भी कहना चाहती थी, लेकिन वो जज्बात में इतना बहक चुकी थी कि वो कुछ नहीं बोल पाई। बस मुसलसल अपनी आंखों से बहते आंसुओं को साफ करती जा रही थी। उसने गाड़ी रहीम साहब के घर के सामने रोकी और उसे अंदर जाने का इशारा किया। जब वो फौरन बोली, आप नहीं चलेंगे? उसने सर को नफी में हिलाया और अपना मोबाइल निकालते हुए बोला, तुम्हारे पास आधा घंटा है, अपनी माँ से मिलो, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारो और फिर आधे घंटे बाद बाहर आ जाना, मैं यहीं पर खड़ा हूं। वो फौरन ही गाड़ी से उतर गई और अंदर की तरफ दौड़ चुकी थी। आधे घंटे तक उसने अपना मोबाइल इस्तेमाल किया था। वो जानता था कि वो खानदान के साथ बगावत कर रहा है। हवेली में जब ये बात मालूम होगी तो सब उसके खिलाफ हो जाएंगे, दाजी उसे खफा हो जाएंगे। मगर उसे मालूम था कि दाजी उसे बहुत प्यार करते हैं, कभी भी उसके खिलाफ जा नहीं सकते, और हूर को वो उदास नहीं देख सकता था। उसकी दुआ सुनकर न जाने क्यों इसे हूर पर एकदम से रहम आ गया। वो जुदाई का दर्द जानता था, इसीलिए वो उस मासूम सी बच्ची को जुदाई का दर्द नहीं देना चाहता था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो बाहर आई तो उसके साथ उसकी अम्मा भी मौजूद थी। उसके अलावा और कोई नहीं था। उसने गाड़ी का दरवाज़ा अनलॉक कर दिया। उसकी माँ पीछे वाली सीट पर बैठते हुए बोली, साहब, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। खुदा ने आपको बहुत मेहरबान बनाया है, अल्लाह आपको इसका अजर ज़रूर देगा। आपने एक दुखी माँ की हाजत को पूरा किया, खुदा ताला आप पर ज़रूर मेहरबान होगा। उसने एक निगाह इस औरत पर डाली और धीमी आवाज़ में बोला, शुक्रिया आपका, गाड़ी से उतर जाएं, मुझे हवेली जाना है। जबकि होर मुस्कुराती निगाहों से आरिम को देख रही थी। उस औरत ने एक बार फिर अपनी बेटी को प्यार किया और गाड़ी से उतरकर अपने घर के अंदर चली गई। उसने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और गाड़ी एक ढाबे की तरफ मोड़ ली। वो आज का दिन सिर्फ और सिर्फ हूर के साथ रहना चाहता था। उन दोनों ने बहुत अच्छे से बाहर ही खाना तनावुल किया और फिर हवेली लौट आए। ये बात किसी को मालूम नहीं हुई थी कि वो लोग हूर के घर गए थे, क्योंकि आरिम किसी गार्ड को साथ नहीं लेकर गया था। वो इतने आम अंदाज में घर से निकला कि किसी को शक भी नहीं हुआ। अगले रोज ही वो शहर की तरफ निकल गया, मगर इस बात से लापरवाह कि जब वो वापस आएगा तो उसकी हूर लुट चुकी होगी, उसकी बीवी पर दाग लग चुका होगा। मगर कहते हैं ना, खुदा आजमाइश में ज़रूर डालता है, मगर उस आजमाइश से निकालता भी है। वो शहर आ गया था। इरादा आज उसका जलसे में जाने का था, मगर शहर में दाखिल होते ही उसे बहुत बेचैनी होने लगी। उसे मुसलसल वो याद आ रही थी। हालांकि वो अपनी मोरे और दाजी सबको ताकीद करके आया था कि कोई उस पर हाथ नहीं उठाएगा, कोई उसके साथ बदतमीजी नहीं करेगा, मगर उसके बावजूद उसका दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। और वो रात 2 बजे हवेली लौट आया। मगर जब अपने कमरे में दाखिल हुआ और सामने का मंजर देखा तो उसकी रूह तड़प उठी, क्योंकि हूर बहुत अबतर हालत में जमीन पर पड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। यकीनन उसे किसी ने दरिंदगी का निशाना बनाया था। चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे। जिस्म पर उस दरिंदे की छाप नजर आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे आरिम का खून निचोड़कर उसके चेहरे पर आ चुका हो। वो बेसाख्ता अपनी बीवी की तरफ भागा और बिना हालात की परवाह किए बगैर वो उसे अस्पताल लिए दौड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जिस लड़की को वो अपनी बीवी बोल रहा था, जिसको अपने सीने से लगा रहा था, जिसका हर दुख अपने साथ बांट रहा था, उस लड़की को उसके पीछे कोई रौंद कर चला गया। हर किसी की निगाह आरिम खानजादा पर थी,
जो अपनी बाहों में 13 साला हूर को उठाए अस्पताल आया। न्यूज़ वालों ने उसकी तस्वीर खींची, मगर वो किसी की परवाह नहीं कर रहा था। न्यूज़ वाले अस्पताल कैसे पहुंचे, उसे कुछ इल्म नहीं था। वो सीधा अस्पताल में दाखिल हुआ तो डॉक्टर्स फौरन ही उसका इलाज करना शुरू कर चुके थे। यकदम मोरे की कॉल आने लगी। उसने कॉल रिसीव की तो वो तड़प कर बोली, ये क्या है आरिम? बनी में आई लड़की है और अब तो दागदार भी, अभी उसे तलाक। उसकी मोरे ने इतना ही कहा था कि वो गुस्से से धाड़ उठा। वो मेरी बीवी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और जल्द मालूम हो जाएगा इसके पीछे किसका हाथ है। उसे इल्म तो था, मगर वो फिलहाल अभी किसी पर जाहिर नहीं कर रहा था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे और कोई उम्मीद नहीं दिलाई गई थी। यही वजह थी कि वो हद से ज्यादा परेशान था। तकरीबन 1 घंटा मुस्तकिल इलाज के बाद डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि अब वो खतरे से खाली है, लेकिन दिमागी तौर पर ठीक नहीं। वो अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ तो वो मुरझाया हुआ फूल लग रही थी। उसे बेहद अफसोस हुआ था कि वो उसे तन्हा छोड़कर शहर चला गया। क्यों? आखिर उसे ऐसी कौन सी जल्दबाजी लगी थी? जलसा बाद में नहीं हो सकता था? उसने हूर को सीने से लगा लिया और उससे खूब माफियां मांगी, जबकि उसने फौरन ही अपने जासूस हवेली में छोड़ दिए थे और फिर महज 1 घंटे बाद ही उसको इस बात का इल्म हो चुका था कि उसकी बीवी के साथ दरिंदगी दिखाने वाला उसका अपना सगा चच्चा है। वो हर बात भूल गया। उसने सबके दरमियान अपने सगे चचा पर हाथ उठाया। उसका बाप जुल्फिकार खानजादा बीच में आए थे, मगर वो तो ऐसा हो गया जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। और उस पल दाजी ने अपने छोटे बेटे को हवेली से निकाल दिया कि तुम जब घर की बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते, उनको ही गलत निगाहों से देख सकते हो, तो मेरी हवेली में तुम्हारी कोई जगह नहीं। जबकि हवेली में मौजूद हर शख्स हैरान था कि आरिम खानजादा को क्या हो गया है। और उस पल मोरे, जुल्फिकार खानजादा और दाजी सब समझ गए थे कि उनका आरिम इश्क की इंतहा पर पहुंच गया है। बेशक वो लड़की 13 साल की थी, मगर वो उसकी बीवी थी। और फिर दुनिया ने देखा उस बन्नी में आई हुई लड़की के ठाठ। उसने उसके साथ अभी कोई रिश्ता कायम नहीं किया था, बल्कि उसका स्कूल में दाखिला करवाया था और उसको तालीम दिलवाई थी, और सबके सामने ये दावा किया था कि जब तक वो 18 साल की हो जाएगी तो वो धूमधाम से उसके साथ रुखसती करेगा। मगर इन 5 साल के दरमियान वो उसको हाथ भी नहीं लगाएगा। और ऐसा ही हुआ। वो खानजादा था, वो आरिम खानजादा था, अपने दाजी की जान कलाम का शहजादा। भला वो कैसे किसी मासूम लड़की की इज्जत को रौंद सकता था? उसके चचा ने कई बार आकर माफिया मांगी, लेकिन उसने दाजी को साफ कह दिया था, अगर ये शख्स लौट कर आया तो मैं इस हवेली को छोड़कर चला जाऊंगा। और दादी सब बर्दाश्त कर सकते थे, मगर अपने कलाम के शहजादे की दूरी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।